رسول اللہ۔ سامعین، ہمارا ٹاپک جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے روزے کے ہوتے ہوئے اگر اپنی بیوی کو سے مذاق کیا یا ہنسی کیا یا اس کو چھو لیا یا پاس بٹھا لیا یا لٹایا اور اپنی خواہش پر قابو پا لیا تو اس وقت ہمارا روزہ رہے گا یا نہیں، اور ایسا کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں۔ سامعین حضرات محترم، روزے کی حالت میں جس طرح کھانا پینا حرام ہے اسی طرح بیوی سے صحبت کرنا بھی حرام ہے، لیکن بیوی سے بات چیت کرنا، ہنسی مذاق کرنا، اس کو چھونا، پاس بٹھانا یا لٹانا، بلکہ اگر اپنی خواہش پر قابو کا یقین ہو تو اس کو چپٹانا یا بوسہ وغیرہ لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان مروی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے روزے کی حالت میں بیوی کو چپٹانے اور بوسہ لینے کے تعلق سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی، اور آپ کے پاس دوسرا شخص آیا اسی اسنا میں اور اس نے بھی یہی سوال کیا تو آپ نے اس کو منع فرما دیا۔ تو حضرات اب اس میں فرق کیا تھا؟ پہلا جو شخص تھا وہ بوڑھا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے ان کاموں کے لیے جو ہے اظہار کیا اور اجازت آئی تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی۔ کیوں کہ وہ بوڑھا تھا، پرہیزگار تھا، تقوی دار تھا، وہ اپنی خواہشوں پر کنٹرول کرتا تھا۔ اور دوسرا شخص جس کو منع فرما دیا، جس شخص کو اجازت نہیں دی، وہ نوجوان تھا، تو آپ نے اس کو منع فرما دیا۔ تو جس شخص کو اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جس کو منع فرمایا وہ جوان تھا۔ تو حدیث سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ایسا جوان جو اپنی خواہش پر کنٹرول نہ کر سکے وہ یہ عمل نہ کرے، لیکن بوڑھا یا ایسا متقی شخص جو پوری طرح اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو اگر یہ کام کرے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن بہرحال نہ کرنا بہتر ہے۔ اور سامعین کرام، ایک ہمارے احباب کا یہ سوال تھا کہ روزے کی حالت میں ہم کیا مسواک کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سے دانت صاف کر سکتے ہیں؟ جائز ہے نہیں۔ تو سامعین، روزے میں مسواک کرنا یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سے دانت صاف کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دانتوں کی صفائی سحری کے بعد ہی کر لی جائے، تاہم مسواک کرنے میں قطعاً کوئی مذاقہ نہیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو روزے کی حالت میں بے شمار مرتبہ مسواک کرتے دیکھا۔ اور سامعین کرام، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں اطلاع ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھوں میں سرما لگایا یا سر میں تیل ڈالا یا تھوک نکل لیا یا انجیکشن لگوا لیا یا خوشبو لگائی یا سوگی یا گرمی کی وجہ سے بار بار نہاتے ہیں اور سر پر پانی ڈالتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ تو سامعین کرام، نہ سونے سے احتلام ہو جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ آنکھوں میں سرما یا دوا لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، سر میں تیل ملنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوک نگلنے سے، بوقت ضرورت انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور خوشبو لگوانے اور سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور سخت گرمی کی وجہ سے بار بار نہانے یا سر پر پانی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور پانی میں بیٹھے رہنے یا لیٹے رہنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور سامعین، ہمارے ایک احباب کا یہ سوال تھا کہ ہم نے روزہ دار ہوتے ہوئے جان بوجھ کر الٹی کی تو کیا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا یا رہ جائے گا؟ تو سامعین، اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر الٹی کی اور وہ منہ بھر ہے یعنی منہ بھر کے ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر اپنے آپ الٹی ہو گئی تو وہ منہ بھر ہے یا نہیں، بہر تقدیر وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹائی، تو اگر بھر منہ نہ ہو تو روزہ نہ، یعنی اپنے آپ بھی اگر الٹی آئی اور بھر منہ وہ ہو اور لوٹ گئی یا خود لوٹائی تو روزہ نہیں گیا، اگرچہ لوٹ گئی، اس نے خود لوٹائی یا بھر منہ ہے، یعنی اگر بھر منہ ہے یعنی کم ہے اور اس نے لوٹا لی تو روزہ نہیں گیا، اور اگر بھر منہ ہے منہ بھر کے اس نے لوٹائی اگرچہ اس میں سے صرف ایک چنے کے برابر حلق سے اتری تو روزہ جاتا رہا۔ سامعین، یہ در مختار وغیرہ بہار شریعت پنچم صفحہ نمبر 117 یعنی حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 117 کا حوالہ ہے۔ تو سامعین، جیسا کہ ہم پہلے عرض بھی کر چکے ہیں کہ ہر عبادت اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب پوری طرح شریعت کی پابندی کے ساتھ ادا کی جائے۔ سامعین و ناظرین اکرام، روزہ رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے شرعی احکام پوری طرح جانیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم نے جو مسائل بیان کیے ہیں وہ اگرچہ مختصر ہیں لیکن بہت ہیں۔ مزید تفصیلی مسائل جاننے کے لیے علماء اور ائمہ سے رابطہ رکھنا چاہیے، اور پڑھے لکھے لوگوں کو خود مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا ایک اہم ارشاد اور ملاحظہ فرمائیے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ بہت سے روزے دار ہیں جنہیں روزوں سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں، اور بہت سے رات کو عبادت کرنے والے جنہیں سوائے جاگنے کچھ نہیں۔ تو میرے آقا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस इरशाद यानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद का मतलब यह है कि बहुत से लोग रोज़े रखते हैं और उनका फ़र्ज़ अदा भी हो जाता है कि बज़ाहिर वो रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम नहीं करता, लेकिन जो तकवा और बुलंद मर्तबा और बुलंद दर्जा रोज़े से नसीब होना चाहिए और तरावी अदा करने से जो फ़रहत मिलना चाहिए, उससे वो महरूम रहते हैं, क्योंकि वो रोज़े की हालत में भी अपनी बेहुदा आदत के मुताबिक झूठ बोलते हैं, मक्र, बोहतान यानी किसी पर इल्ज़ाम लगाना और गीबत दूसरे इंसान की बुराइयाँ वगैरह से बाज नहीं आते। वो तिजारत करते हैं तो धोखा देने से बाज नहीं आते, यानी तिजारत करते हैं तो तोल में कमी कर देते हैं, मुलाजिमत करते हैं तो सुस्ती से बाज नहीं आते, यानी कि नौकरी करते हैं तो सुस्ती से काम लेते हैं, लोगों पर जुल्म करने, दूसरों का हक मारने, रिश्वत लेने, सूद से पैसा कमाने की गैर शरई हरकतों को नहीं छोड़ते। तो रमज़ान के एक महीने का रोज़ा तो मुसलमान को बहुत बुलंद कर सकता है, लेकिन उस बस नसीबी का क्या इलाज कि मुसलमान खुद ही अपनी हालत को तब्दील नहीं करना चाहते। हमारी तो हालत उस मरीज़ की सी है जो दवा इस्तेमाल तो करता है लेकिन उसको दवा का पूरा फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो सामीन नाज़रीन इकराम, झूठ की जब बात आई तो मुझे हज़रत लुक़मान की नसीहत उनके बेटों को याद आई। आपने अपने बेटों से बतौर नसीहत इरशाद फरमाया कि झूठ मत बोलना, अगरचे झूठ चिड़िया के गोश्त की तरह लजीज होता है, लेकिन ज़रा से झूठ की बुराई झूठ बोलने वाले को हिला को बर्बाद कर देती है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत लुक़मान हकीम अपने बेटों को झूठ से बचने की नसीहत फरमाते हैं, जबकि हम अपने बच्चों को खुद झूठ बोलना सिखाते हैं। अल्लाह की पनाह, हज़रत लुक़मान ने मिसाल भी कितनी अच्छी दी कि झूठ चिड़िया के गोश्त की तरह लजीज होता है, लेकिन मामूली झूठ की बुराई झूठ बोलने वाले को हिला को बर्बाद करके रख देती है। जिस तरह गोश्त की लिज्जत थोड़ी देर के लिए है, यूं ही झूठ की लिज्जत भी थोड़ी देर के लिए। काश हम समझने की कोशिश करते और झूठ से बचकर खुद को हिलाक होने से बचाते। इससे यह भी मालूम हुआ कि घर के तमाम बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को झूठ की आफतों से आगाह करते रहें, ताकि बच्चों को झूठ की बुराई का पता चल सके। मौला हम सब पर करम की नज़र फरमाए और झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए। सामीन इकराम, यहाँ से पता चला कि हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो हम कितने बड़े खसारे में। और कुछ लोग खयानत करते हैं, यानी अमानत में खयानत करते हैं। तो खयानत के ताल्लुक़ से हज़रत सुफियान बिन असद हिज़्रमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत कि मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते सुना कि बड़ी खयानत यह है कि तू अपने भाई से कोई बात कहे और वो तुझे सच्चा जान रहा हो, हालांकि तू उससे झूठ बोल रहा है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मज़कूरा हदीस पाक की रोशनी में देखा जाए तो बहुत कम लोग इससे महफूज नजर आए। यानी कि आजकल कुछ लोगों का ये होता है कि किसी से वो बात कहते हैं और उसमें झूठ बोल देते हैं, तो वो खयानत कर रहे हैं। सामने वाला तो ये समझ रहा है कि वो सच बोल रहा है, अपनी आंखों देखी बात कर, लेकिन वो आंखों देखी बात होने के बावजूद उसमें कुछ ऐसी मिलावट कर देता है जिसको खयानत कहा जाता है। तो सामीन, हम कोशिश करें कि हर किस्म की खयानत से अपने आप को बचाएं, उसमें हमारा फ़ायदा और वो ये कि दोनों जहां की रुसवाइयों से हमको मौला ताला बचा ले, जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको बचा लेगा और खूब खूब इज़्ज़त और बरकतों से नवाजेगा। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो सामीन इकराम, यहाँ दो बातें वाज़ेह हो गई कि हम रोज़े की हालत में अगर झूठ बोल रहे हैं तो अपने आप को खसारे में डाल रहे हैं, खयानत कर रहे हैं, यानी बातों में भी खयानत होती है। जैसा कि अभी आपने सुना कि इंसान किसी को कोई बात बता और सामने वाला सुनने वाला उसको सच्चा जाने और वो इंसान अपनी तरफ से झूठ मिला कर बातें कहता हो, तो ये खयानत है। सामीन इकराम, तो हमारी हालत तो उस मरीज़ की सी है जो दवा इस्तेमाल तो करता है लेकिन उसको दवा का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि वो उन चीज़ों से परहेज़ नहीं करता जिनसे दवा इस्तेमाल करने के दौरान परहेज़ ज़रूरी है। अब उस मरीज़ की हालत ना बदलने और मर्ज़ ख़त्म ना होने में ना तो डॉक्टर का कसूर है ना ही दवा की खराबी। तो सामीन नाज़रीन इकराम, इसमें शक नहीं कि रोज़ा मुसलमान की मादी और रूहानी बुलंदी का ज़रिया है, लेकिन अफसोस कि हम उसको एक रस्म समझकर इख्तियार करते हैं और वो परहेज़ नहीं करते जिससे उसका पूरा फ़ायदा नसीब हो। याद रखिए, खुदा ताला ने हमारी फलाह व बहबूद के लिए हमें इबादतों के तरीक़े अता फरमा दिए, लेकिन खुदा ही का ये कानून भी है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो लोग अपने आप में तब्दीली पैदा नहीं करते। तो सामीन इकराम, यहाँ से पता ही चलता कि खुदा अच्छे लोगों को कभी तबाह व बर्बाद नहीं करता अगर वो अच्छाई पर रहते हैं, लेकिन जब वो खुद ही अच्छाई का रास्ता छोड़कर बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं तो खुदा का उन पर अजाब आता है। इसी तरह बदकार व बदकिरदार लोग
अमन और चैन कभी नहीं पा सकते जब तक कि वो खुद को तब्दील न करें और बुराइयों का रास्ता छोड़कर बगावत से तौबा करके खुद को अच्छा न बना ले, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी इख्तियार न करें। तो सामीन इकराम, आज सोशल मीडिया का दौर है। आज मैं ये देखता हूँ कि लोग लाइकी टिकटॉक पर जाकर जो है नंगी नंगी लड़कियों की तस्वीरें फॉलो भी करते हैं और देखते हैं। तो सामीन, रोज़े की हालत में हो चाहे गैर रोज़े की हालत, ये जो है निगाह का जिना है, नज़र का जिना है। सामीन, इससे हमको बचना चाहिए, बचना नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। खुदा अच्छे लोगों को कभी तबाह बर्बाद नहीं करता। सामीन, इस्लाम यकीनन अपने मानने वालों को अमन और चैन की ज़िंदगी बख्शता है। अगर हम माजी की तारीख़ यानी अपनी पिछली तारीख़ अपने 1400 साल पहले यानी हमारे अहबाब ने, हमारे असलाफ ने जो हमारे लिए सीरत पेश की है, अगर उस पर गौर करें तो इस्लाम ही ने जाहिल और वहशी इंसानों को दुनिया की सबसे ज़्यादा मुहज़्ज़ब और बावक़ार और बुलंद मर्तबा कौम बनाया। लेकिन उन्होंने सिर्फ इस्लाम का कलमा ही ना पढ़ा था बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी को इस्लामी सानिहा में यानी सांचे में ढाल दिया था। आज हम मुसलमान कहलाते हैं, दूसरे बड़ी कौम भी हैं, दौलत की भी हमारे पास कुछ कम नहीं, यानी हम मुसलमान भी कहलाते हैं, दुनिया की दूसरी बड़ी कौम भी है, दौलत की भी हमारे पास कुछ कमी नहीं, लेकिन माशी सियासी हर एतबार से कमज़ोर है। क्यों कि तेल के कुएं सोने की कानें हमारे पास है, लेकिन हमारी इज्जत और आबरू गैरों ही के कब्जे में। हम खुद को कोई क़ुव्वत नहीं, दूसरों के सहारे जिंदा। आखिर क्यों, जबकि इस्लाम तो हमारी बुलंदी और उरूज का ज़ामिन है, हमारी इज्जत और आबरू का मुहाफ़िज़ है, हमसे अमन और सुकून की ज़िंदगी का वादा करता है। अगर आप गौर करें, हम गौर करें तो इस हकीकत का इतराफ़ करेंगे कि हमने कलमा तो पढ़ा है, इस्लाम को मानने का दावा तो किया है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्सा में इस्लाम को इख्तियार नहीं किया। हमने इस्लाम के हुक्म पर अमल करने के लिए कौन सी कुर्बानी की है? कौन है जो भूखा रहना बर्दाश्त करे लेकिन सूद की दौलत पर नज़र ना डाले, दूसरों का हक ना मारे, किसी पर जुल्म ना करे, झूठ ना बोले? तो हम तो अपने पेट की आग बुझाने के लिए, अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हलाल और हराम का फ़र्क तक भूल गए। नाज़रीन इकराम, और ऐसी हालत पर रहकर सिर्फ चंद मस्जिदों और चंद रोज़ों के ज़रिया अपनी हालत में तब्दीली चाहते हैं। ज़िल्लत व ख्वारी इज़्ज़त व अज़मत में बदल सकती है, लेकिन हमें कुर्बानी देना होगी, अपनी बदकारी बदकिरदारी को छोड़ना होगा। और अगर हमने ऐसा ना किया तो पूरे महीने तरावी पढ़ें, रोज़े रखें, तक़वा परहेज़गारी का खूब मुज़ाहरा करें, कुछ नसीब नहीं हो सकता। बस आइए आज हम आज तक किए हुए अमाल का जायज़ा लें, अपने गुनाहों से तौबा करें और फिर रोज़ा रखें। यकीन जानिए बड़ा सुकून नसीब होगा, सारी बलाएं और मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सामीन इकराम, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके ज़रिए इंसान तक़वा परहेज़गारी हासिल कर सकता है और करते भी हैं लोग, लेकिन हज़रात हमको अपने किरदार पर नज़र डालने की ज़रूरत है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करें कि परवरदिगार आलम हम सबको अमल खैर अता फरमाए, मज़हब इस्लाम का सच्चा पासबान बनाए, शरीयत मुतारा पर सच्ची तरीक़े से अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। उलमा अहले सुन्नत से मोहब्बत और औलिया इकराम से इश्क़, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का मदीना हमारे दिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बना दे। परवरदिगार आलम हम सब की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अहलो अयाल जो हालत ईमान पर इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे, मौला तबारक व तआला तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे और तमाम को जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। कोरोना वायरस जैसी बीमारी से परवरदिगार आलम दुनिया के तमाम मुसलमान अहले सुन्नत को महफूज व मामून फरमाए। आमीन बजाहि सय्यिदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कलमा शरीफ का व्रत कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सामीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सामीन आपसे फिर एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि आने वाले वक्त में हर रोज़ जो हम नए नए वीडियो इस तरीके के डाल रहे हैं आप हज़रात उनको सबसे पहले देख सकें। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो सामीन इकराम आपसे छोटी सी गुजारिश यही है कि आप शेयर भी कर दें, ताकि हमारे और आपके ज़रिए जो है दूसरे लोग भी ऐसी बातें हासिल करके फ़ायदा हासिल करें और उन पर अमल करने के बाद अपनी ज़िंदगी को शरीयत मुतारा के सांचे में ढाल कर अपने आप को मज़हब इस्लाम का सच्चा पासबान साबित करके दुनिया वालों को ये दिखा दे कि परवरदिगार आलम के बंदे नबी पाक अलैहिस्सलाम के आशिक ऐसे होते हैं जिनको देख करके इंसान मज़हब इस्लाम का परचम जो है अपने हाथ में थामने की कोशिश करता है और थाम भी लेता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।